Good morning, student of class 3. How are you? I hope you all are well. So, student, I am teaching you chapter number 12. Name of the chapter is Locating Places. Date is 21st 8 2020. So, student, take out your book, open page number 63 of your book and take one rough copy and note down the important points from the board, and if there is any confusion you can ask me in EVS online doubt session. Okay, so let's do little recapitulation what we have done in our earlier video. So student, what are neighbors? So student, in my previous video I explained you what are neighbors, what is neighborhood, or you can say what are the neighborhood places where you are living. When you put one step out from your house, it means that places are known as their neighborhood. Is it clear? And what are the neighborhood services? What does it means? It means the facilities. Is it clear? It means the facilities which are present in your neighborhood, कि आपके neighborhood में कौन कौन सी सुविधाएं हैं. ठीक है. So that is their neighborhood services, like market for buying different things or eating items. You go to the market, police station, park, post office, bank. So what are these? These are the neighborhood services. And after that we had done a little discussion on what is sketch and what is map. So what is a sketch, student? Sketch is a rough drawing. Is it clear? What is sketch, student? Sketch is a rough drawing of a place. But when we are talking about the map, it gives the exact measurement. Is it clear? So these are the things which we have discussed in our previous video. So student, let's start from here. We see, open page number 63. This is a sketch of her neighborhood. Yesterday I draw a picture, a sketch of the neighborhood of Fatima and how you can help her. आप कैसे उसकी हेल्प कर सकते हो कि वो अपने स्कूल जाए. ठीक है. So that thing I have already explained you in my previous video. So student, this sketch is a rough drawing of a place and uses sign and symbols instead of picture. It does not show the exact measurement. So if you want to note down what is sketch, you can write the definition of a sketch. Sketch is a, what is sketch? So note down, a sketch is
a rough drawing so what is sketch, student? Sketch is a rough drawing of a place. Okay, yesterday I draw a drawing, this picture. I draw this picture on the board. Okay, so in this you will see, this is what? This is a picture of a tree. This is Fatima house. What is this? This is a road. This is post office. And what is this? This is supermarket. So in this you will see that the pictures are shown. ठीक है, इसमें आपने देखा कि पिक्चर शोन है, पिक्चर सिखाई है, लेकिन जो हम लोग स्केच बनाते हैं, स्केच इज ए रफ ड्राइंग ऑफ ए प्लेस. ठीक है, व्हाट इज ए स्केच? स्केच इज अ रफ ड्राइंग ऑफ ए प्लेस. और हम लोग क्या, वी यूज सिंबल्स और साइन इंस्टेड ऑफ पिक्चर. जैसे ये बुक में आपको भी मैंने एक पिक्चर दिखाई. ठीक है, तो इसी तरह की बेटा पिक्चर क्या होती है, ये तो पिक्चर में मैंने दिखाया आप लोग को. लेकिन स्केच क्या होता है? स्केच इज अ रफ ड्राइंग ऑफ ए प्लेस. तो स्केच में व्हाट वी डोंट यूज, वी डोंट यूज पिक्चर्स. हम पिक्चर्स नहीं यूज करते, उसकी जगह साइन या सिंबल्स बनाते हैं. ठीक है, साइन या सिंबल्स बना के. और अनदर थिंग इज दैट स्केच डू नॉट गिव द एग्जैक्ट मेजरमेंट. ठीक है, स्केच क्या है? एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं देता. स्केच डू नॉट गिव द exact measurement. Is it clear? So now see, a sketch is a rough drawing of a place that I have already written on the board. If you want to note down in your rough copy, you can write. And uses sign and symbol instead of picture. So we don't draw a pictures. ठीक है, we don't draw a picture, we use signs or symbols instead of pictures. Okay, and another thing is that it does not show, another thing, it does not show exact measurement. Okay, it does not show the exact measurement. Is it clear? मतलब रफ हम लोग ड्रॉ करते हैं. ये जैसे हम बोल देते हैं कि ठीक है, आपको मेरे घर आना है, तो आप वहां से टर्न लोगे तो लगभग मान लो 100 मीटर आपको पैदल चलना पड़ेगा. उसके बाद राइट टर्न आएगा, देन अगेन यू हैव टू वॉक फॉर 50 मीटर एंड देन दैट इज ए प्लेस. ऐसे बताते हैं, एक हम अंदाज से डिस्टेंस बताते हैं. ठीक है, क्योंकि उस प्लेस को हम बहुत अच्छे से जानते हैं, हम कई बार वहां से गए हैं, तो हम एक इमेजिन करके, अपने से एक इमेजिन करके डिस्टेंस बताते हैं, एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं बताते हैं. सो इट डज नॉट शो एग्जैक्ट मेजरमेंट. लेकिन अगर आप मैप में कोई भी चीज होगी तो वो आपको एग्जैक्ट मेजर, अगर उसमें कोई, क्योंकि यस्टरडे कल वाली वीडियो में मैंने बोला था कि मैप का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, इट ड्रॉ ऑन द स्केल. ठीक है, उसमें एग्जैक्ट मेजरमेंट का पता चलता है. अगर डिस्टेंस है तो कितना डिस्टेंस है, यू हैव टू कवर 10 किलोमीटर, 50 किलोमीटर. इफ यू आर गोइंग फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी, मान लो आप वाराणसी में हो, आप दिल्ली जा रहे हो. ठीक है, या तो दिल्ली से वाराणसी आ रहे हो, तो मैप में एग्जैक्ट डिस्टेंस पूरा सेम दिखा देगा कि बनारस से दिल्ली का डिस्टेंस कितना है. इज इट क्लियर? इसलिए क्या है, मैप में एग्जैक्ट मेजरमेंट होता है, बट जो तुम्हारे ये स्केच होते हैं, इट इज ए रफ ड्राइंग ऑफ ए प्लेस. ठीक है, किसी भी प्लेस की ये एक रफ ड्राइंग होती है. और सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इट डज नॉट शो एग्जैक्ट मेजरमेंट. ये एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं दिखाती है.
ये एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं शो करती है. इज इट क्लियर? ओके. नाउ सी स्टूडेंट, to get an exact, okay, to get an exact size and location we use map. ठीक है. एग्जैक्ट साइज और लोकेशन के, लोकेशन वर्ड इसलिए यूज किया है बिकॉज मैप्स में डायरेक्शंस होती हैं. इज इट क्लियर? टू नो द एग्जैक्ट डिस्टेंस एंड लोकेशन ऑफ एनी प्लेस दैट इज यूज्ड इन द मैप. ठीक है. और वेन एवर यू ऑब्जर्व द मैप, जब भी आप मैप को ऑब्जर्व करोगे बेटा, जैसे मैप की जो टॉप वाली होती है, ठीक है, हमेशा मैप में जो टॉप की जो डायरेक्शन होती है दैट इज नॉर्थ, और जो बॉटम में होगी, फॉर एग्जांपल यू सी द मैप ऑफ इंडिया, सी दिस इज द मैप ऑफ ए इंडिया. इज इट क्लियर? This is the map of India. So on the top of the map you will see what? On the top of the map आप देखोगे, क्या देखोगे आप? टॉप मैप के जो टॉप पे जो हमेशा पिक्चर जो होती है बेटा, वो क्या होती है? दैट इज मैप के टॉप पे जो डायरेक्शन होती है दैट इज नॉर्थ. और जो मैप के बॉटम में देखोगे, जैसे ये पेज है ना, फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर कॉपी पेज. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर कॉपी पेज. तो यहां से अगर मैप है कोई, तो टॉप, ये टॉप मैप का ये टॉप है, ये मैप का क्या है? बॉटम है. ठीक है. तो टॉप की जो हमेशा डायरेक्शन होती है दैट इज ऑलवेज शोन ऑन द मैप इज नॉर्थ. कौन डायरेक्शन शो करते हैं? नॉर्थ. और ये पेपर का बॉटम है, तो बॉटम पे जो डायरेक्शन होती है दैट इज ऑलवेज साउथ. Is it clear? Or this is my left hand, this is my left and this is my right. ठीक है. So here direction is west and here direction is east. मैप में जब भी देखोगे तो डायरेक्शन इसी तरह होती है. टॉप पे नॉर्थ, बॉटम साउथ, एंड इफ माय फेस इज दिस साइड टुवर्ड्स द बोर्ड, जब मेरी फेस आप मेरे बोर्ड की तरफ है, व्हाइट बोर्ड की ओर, सो दिस इज माय लेफ्ट हैंड, दिस इज माय लेफ्ट हैंड. सो दिस इज वेस्ट, दिस इज वेस्ट, एंड दिस इज माय राइट हैंड एंड दिस इज ईस्ट. इज इट क्लियर? व्हेन आई माय फेस इज टुवर्ड्स द बोर्ड, जब मेरी फेस कहाँ है? बोर्ड की ओर है. टॉप डायरेक्शन हमेशा आप जब भी कोई भी मैप ऑब्जर्व करोगे, यू टेक द एटलस ऑफ योर क्लास, या तो फिर अपनी बुक में जो मैप दिया है उसे भी आप देख लो, तो हमेशा टॉप की जो पोजीशन होती है, डायरेक्शन जो होती है वो नॉर्थ होती है, नीचे साउथ, हियर वेस्ट एंड दिस साइड ईस्ट. इज इट क्लियर? तो व्हाट ही इज सेइंग, एग्जैक्ट, ये तुम्हें एग्जैक्ट डिस्टेंस भी बताता है एंड इट टेल यू द एग्जैक्ट लोकेशन. टू गेट एन एग्जैक्ट साइज एंड लोकेशन वी यूज मैप. हम किसका यूज करते हैं? मैप का यूज करते हैं, क्योंकि मैप्स में डायरेक्शन भी शो होती हैं. इज इट क्लियर? नाउ ए मैप इज द ड्रॉइंग ऑफ ए नेबरहुड, सिटी और कंट्री. इट इज ड्रॉन विद एग्जैक्ट मेजरमेंट. A map that show a smaller area or such as a room or a house is called a plan. अब देखो, ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ गया. स्केच क्या है? रफ ड्राइंग है किसी भी प्लेस की. ठीक है. एंड इट डज नॉट शो एग्जैक्ट मेजरमेंट. ये एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं शो करती. अब कोई भी आपसे पूछेगा व्हाट इज अ sketch? Sketch is a rough drawing of a place and it does not show exact measurement. And student, now when we are talking about what? When we are talking about map,
if you want to note down, you can note down in your book for your understanding. Is it clear? Now see map. First point is to get an exact size and location. We use maps. First point. Second point, a map is a drawing of a neighborhood A map is a drawing of a neighborhood, city or country. It is drawn with exact ठीक। अब आ जाओ। ठीक है, अब देखो, अब मैप के फर्दर हमने स्केच का डिस्कशन कर लिया। इज इट क्लियर? नाउ लेट डिस्कस अबाउट द मैप। सो स्टूडेंट, टू गेट एन एग्जैक्ट साइज एंड लोकेशन, देखो मैप में तुम्हें एग्जैक्ट पता चल जाता है कि कौन चीज कितने डिस्टेंस पे है, क्या सब कुछ मैप से पता चलता है। इज इट क्लियर? एंड लोकेशन वी यूज मैप, और मैप्स में क्या डायरेक्शन की भी नॉलेज दी रहती है। इज इट क्लियर? मैप में एक तो एग्जैक्ट मेजरमेंट के बारे में भी, आपको किस प्लेस का किस प्लेस से कितना डिस्टेंस है ये भी आपको पता चल जाएगा, और मैप से आपको ये भी पता चल जाएगा कि वो किस डायरेक्शन में है, जहां आप मूव कर रहे हो, जिस जगह पे आपको जाना है तो उस जगह की क्या लोकेशन है, क्या वो जगह नॉर्थ है, नॉर्थ ईस्ट है, या वेस्ट में है, या साउथ में है। सो दिस नॉलेज यू कैन गेट फ्रॉम द मैप्स, जो कि स्केच के केस में नहीं था। इज इट क्लियर? ए मैप इज ए ड्रॉइंग ऑफ ए नेबरहुड, सिटी और कंट्री। देखो मैप किसी भी चीज का ड्रॉ किया जा सकता है। इज इट क्लियर? वी कैन मेक अ मैप ऑफ ए नेबरहुड, नेबरहुड प्लेसेस का भी बना सकते हैं, सिटी और कंट्री, और इवन यू कैन मेक अ वर्ल्ड मैप, means map of all the countries in the world, that also. Is it clear? Now see student, third, it is drawn with exact measurement. This is the most good, yeah, you can say this is the most good quality of the map, is that it tell you the exact measurement. Exact measurement means it tell you the exact distance between the places, that how much distance you have to cover. Now see, in my previous video also I explained you, now the science uh, has done lot of changes. It makes the things very easy to understand. ठीक है, पहले चलो मैप ये सब देखते थे, पहले रेलवे के मैप्स थे, रेलवे की बुक्स होती थी जिसमें दिया रहता था कि इफ यू हैव टू गो, सो इन दिस व्हाट आर द नेम ऑफ द ट्रेन्स व्हिच आर गोइंग इन दैट रूट, सारी चीजें क्या होती थी, बुक्स में होती थी। इज इट क्लियर? नाउ इट बिकम वेरी इजी ड्यू टू द इंटरनेट सर्विस। Okay, if you have a Android mobile, then open Google Map, and where you are standing already it will take your location, वो आपकी लोकेशन अपने आप ही ले लेगा कि आप कहां खड़े हो, और where you want to go you just write in that, so you will see map will come in your mobile from
it will show all the important landmarks and which road you will follow, how much distance you have to cover, कितना डिस्टेंस आपको चलना है, ऑल द थिंग्स इन अ वेरी सिंपल मैनर पूरे डिटेल में आ जाती हैं। ठीक है, कितना डिस्टेंस आप कार से चल रहे हो तो वो पूरा पूरा मैप में अपने आप पूरा फीडबैक पूरा लिख के आ जाएगा, आपको किस रोड से which road you have to follow, right, left, all the things will come on your screen. That is a very good technology which we can see in our mobiles. ठीक है, अगर आप किसी से नहीं भी पूछते हो, अपने मोबाइल के हेल्प से भी आप अपने डेस्टिनेशन पे, अपनी जिस प्लेस पे आपको पहुंचना है, आप आसानी से जा सकते हो गूगल मैप से। इज इट क्लियर? सो इट इज ड्रॉन विद एग्जैक्ट मेजरमेंट। मैप का हो गया, एक हो गया टू गेट एन एग्जैक्ट साइज एंड लोकेशन बता देता है, लोकेशन मीन्स इट इज इन विच डायरेक्शन। ठीक है, a map is a drawing of a neighbor, you can make a map of a neighborhood also, city, country, or you can make a world map also. So it is drawn with the exact measurement, that is also I make it clear to you. ठीक है, अब देखो बेटा, इसमें एक चीज बोला है, ए मैप दैट शो ए स्मॉलर एरिया such as room or a house is called it a plan. ठीक है, so what does it means? देखो, फॉर एग्जाम्पल, फॉर मेकिंग द हाउस फर्स्ट थिंग वी नीड इज द लैंड। मनी होनी चाहिए, वो तो अलग चीज है, मैं समझा रहा हूं। कोई भी चीज के लिए मनी तो सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मनी होगी तो मनी से आप लैंड ही खरीदोगे, हवा में घर नहीं बनाओगे, है ना? तो देखो, फॉर एग्जाम्पल आपने एक लैंड ले लिया, अब देखो प्लान बताते हैं आपको, प्लान क्या होता है। इज इट क्लियर? फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ लैंड, फॉर एग्जाम्पल ये आपने एक लैंड लिया। ठीक है, अब इस पे हम लोग प्लान बनाएंगे। क्या बनाएंगे? प्लान बनाएंगे। अब आपको क्या बनवाना है? घर बनाना है। ठीक है, तो मान लो ये आपका लैंड था जिसको मैंने पेपर पे बना लिया कि आपका ये लैंड है। ठीक है, इसकी लेंथ इतनी है, दिस इज लेंथ एंड दिस इज ब्रेथ। अब हम प्लान बनाएंगे कि हाउ मेनी रूम्स वी वांट। ठीक है, तो हम इसको कैसे बनाते हैं? स्केल से। ठीक है, फ्री हैंड में स्केल से ड्रॉ कर लिया, जैसे ये है, तो हमने ये कर लिया कि एक रूम मुझे यहां चाहिए। ठीक है, ये मैंने एक प्लान बनाया, 2 रूम हो गए। ठीक है, फिर यहाँ एक रूम और ले लिया। ठीक है, इस साइड इतनी सी जगह मैंने ये बनाए, मैंने रूम। दीज आर द रूम्स। ठीक है, ये मैंने बना लिया किचन। यहां मेरा किचन रहेगा। इज इट क्लियर? नाउ सी दिस स्पेस इज लेफ्ट, ये लॉबी बना ली। ठीक है, बीच में लॉबी होती है ना घर के अंदर। ठीक है, तो ये लॉबी के लिए पोर्शन कर दिया। इज इट क्लियर? फिर इस रूम के बगल में ये मान लो बाथरूम बना लिया आपने, बी और टी लिख दे रहा हूं शॉर्टकट में, बाथरूम बना लिया। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा कुछ इतना पोर्शन, ये क्या है, आपने इतना पोर्शन आपने गार्डनिंग के लिए छोड़ दिया, मान लो गार्डन कर लिया। तो ये क्या, हमने एक प्लान बनाया जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? नक्शा बनाना। ठीक है, तो ये किससे हम लोग ड्रॉ करते हैं? स्केल की हेल्प से। ठीक है, फॉर एग्जांपल दिस इज द प्लॉट, और इसके लिए भी स्टूडेंट एक आर्किटेक्चर होता है। ठीक है, जो बिल्डिंग्स के नक्शे बनाता है। आप इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखते हो ना, ये बिल्डिंग्स के प्रॉपर पहले इसी तरह नक्शे बनाए जाते हैं, मींस प्लान्स बनाए जाते हैं।
एंड आफ्टर दैट इसी प्लान पे वर्क होता है, इसी प्लान्स को लेके फिर बिल्डर्स जो है बिल्डिंग बनाता है। ठीक है, आर्किटेक्चर क्या है, इंजीनियर है, इट मेक्स द प्लान्स, वो नक्शे बनाने का काम करता है। ठीक है, और आफ्टर दैट बिल्डर का काम है बिल्डिंग को बिल्ड करना, फिर वो सैंड है, स्टोन है, ब्रिक्स है, ये जैसे पक्का हाउस बताया था ना, फिर इस प्लान के ऊपर वो बिल्डिंग बनाना स्टार्ट करता है। तो ठीक है, जो छोटा सा है ये जो बताया, a map that show a smaller area such as room or house। ठीक है, ऐसा मैप जो रूम या हाउस को दिखाए उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्लान बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, प्लान बोलते हैं। इज इट क्लियर? आप भी यू आस्क योर पेरेंट्स, जिनके भी घर होंगे, एवरीवन हैज द प्लान ऑफ देयर हाउस। सबके पास अपने जो हाउस का जो नक्शा होता है, जिसको हम लोग आर्किटेक्चर से बनवाते हैं, वो क्या बनाता है, इसी तरह एक रफ, इसी तरह एक स्केल से प्लान बनाता है। जैसे मैंने तो डायरेक्ट लिख लिया, वो पूरा लिखेगा रूम कितना चाहिए, इसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए 11, और इसकी ब्रेथ कितनी होनी चाहिए 10, तो 11/10 हो गया, 11 लंबाई में 11 हो जाएगा और ब्रेथ में 10 हो जाएगा। और व्हाट इज द हाइट, वो भी एवरीथिंग इज डिसाइडेड। मेरे कहने का मतलब कि जो भी हम एक छोटे पे जो प्लान बनाते हैं, दैट इज जो नक्शा बनाना, तो जो हम लोग किसी कोई मैप बना रहे हैं स्मॉलर एरिया के लिए, जैसे हाउस का बना रहे हैं या किसी चीज का, तो उसी को हम लोग बेटा क्या बोलते हैं, प्लान बोलते हैं। ठीक है, और प्लान्स मतलब ये नक्शे बनाने का काम कौन करता है, वैसे इट इज नॉट गिवन इन द बुक, बट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आप ये ध्यान रखो, प्लान्स बनाने का काम कौन करता है, आर्किटेक्चर करता है। ठीक है, ही इज द इंजीनियर हु प्लान्स दिस, हु मेक दिस प्लान्स, एंड आफ्टर दैट द बिल्डर बिल्ड द बिल्डिंग्स और हाउसेस। ठीक है, उसके बाद बिल्डर का काम है हाउस को बनाना, बिल्डिंग्स को बनाना, आर्किटेक्टर का काम है सिर्फ प्लान्स बनाना या नक्शा बनाना, हिंदी में समझ लो। ठीक है, ओके, अब आ जाओ आगे। ठीक, अब देखो, अब देखो जो मैं बता रहा था, दैट इज गिवन इन द ओपन पेज नंबर 64। आपके लिए एक छोटी सी एक्टिविटी है, इसमें तो दिया है ड्रॉ ए स्केच ऑफ योर क्लासरूम, अपने क्लासरूम का स्केच बनाना है तुम्हें। ठीक है, तो दीज डेज स्कूल इज क्लोज ड्यू टू कोविड-19, तो आप अपने घर का एक प्लान बनाओगे। ठीक है, एक पेपर ले लिया, पेज ले लिया। ठीक है, आपके हाउस में कितने रूम्स हैं, लेफ्ट साइड है, राइट साइड, इस तरह आप अपने घर का एक रफ प्लान स्केच बनाओगे। पूरे घर का नहीं बना सकते हो स्केच, तो अपने स्टडी रूम का बनाओ, सिर्फ एक रूम का। ठीक है, एक रूम का स्केच बना लेना, ये तुम्हारी एक एक्टिविटी हो गई। ठीक है, आप अपने या तो पूरे घर का बनाओगे तो बहुत अच्छी बात है, अगर इतना बड़ा प्लान नहीं बना सकते हो तो यू कैन मेक अ प्लान ऑफ योर स्टडी रूम, क्योंकि इसमें दिया ड्रॉ स्केच ऑफ योर क्लासरूम, तो स्कूल इज क्लोज, so this time you are doing study from home, so it is better that you make a plan or you make a sketch of your house। ठीक है, now see in did you know, you see this page, did you know what I am talking with you, what I am discussing with you, the same thing is given here। Nowadays many people have maps in their mobile phones, is it clear? They can find the way to a place using a Google map। वही चीज मैं आपको बता रहा था, बाई चांस आप बाईपास पे हो, हाईवे पे आप ड्राइव कर रहे हो, आपको पता नहीं चल रहा है कहाँ जाना है, इज इट क्लियर? क्योंकि जब हम लोग सिटीज एरिया में होते हैं, ये सब मान लो आपको नहीं पता चल रहा है, ठीक है, तो इट इज वेरी इजी, सिंपली आप अपना मोबाइल में ऐप खोलिए गूगल मैप, एंड यू जस्ट टाइप योर करंट लोकेशन, विच अगर आपने अपना ऑप्शन पहले ही से ऑन रखा होगा टेल माई लोकेशन, तो वो अपने आप ही उसमें आ जाएगी आप कहाँ पे हो, और वेयर यू हैव टू गो यू टाइप दैट थिंग, and all the things with the help of a map, and all things in that Google map it will show which road you have to go, from where you have to take a turn, all things very easily you are able to understand this what I am talking about in a mobile Google map। Okay, so student,
I hope you understand what is sketch, a rough drawing of a place, what is the importance of a map, and what is a plan. Okay, thank you student.